Okay, students. Now we will start the what? The first live class of the chapter 3. That is our Excel database. Before starting that one, first of all, I like to say about the very good afternoon to my dear students. Okay, so students, we have already completed two chapter. Okay, we have already completed two chapter. That is also we have completed our fair copy also. Those students have not completed. First of all, you complete that one. Okay, and now we'll start the our Excel database. So students, what do you mean by first of all database? Okay, so student, data means collection of information. Data means collection of information. Data means collection of information. Okay. Data means collection of information where it will be stored in a particular area, particular location for a permanently at any time we can easily access, we can see, okay students, we can easily use, we can easily share. That is our database. Okay. So student, database means what? It is a collection of related information for which we can easily store, access, use, sharing, etc. That is our database. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डेटा मीन्स क्या हो गया? बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग स्टोर कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होगा हम लोग का, इजीली हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। जब भी हम लोग को जरूरत होगी तब हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। जब चाहेंगे उसको हम लोग दूसरे के साथ शेयरिंग भी कर पाएंगे। जब चाहिए उसको फिर हम लोग यूज भी कर पाएंगे फर्दर। आगे सपोज हम लोग आज कुछ काम किए, आज के लिए मेरा कंप्लीट हो गया, तो हम चाहेंगे फिर परसों के लिए कुछ काम करने के लिए, तो आगे फिर हम लोग जहां पे कंप्लीट हो गया उसके आगे हम लोग काम कंप्लीट करना चाहते हैं। यही सारा चीज को लेकर हम लोग क्या बोलते हैं? डेटाबेस। दैट इज आवर डेटाबेस। You are also attending the school also, you are coming to school also. So first of all, in the first period, your class teacher is doing what? First of all, they are taking the attendance. Yes or no? So students, attendance will take by the attendance register. In the attendance register, what type of informations are there? Your name, your roll number, class, section, number of students, number of present, number of absent. These informations are recorded in your register. At any moment, any time, if your parents will come and they will ask, please show me my son या daughter's record. वो चाहेंगे कि मेरा बेटा या बेटी का अटेंडेंस का रिकॉर्ड हमको दिखाइए। हम जानना चाहते हैं कि वो क्लास करते हैं कि नहीं करते। तो हम लोग क्या करेंगे? अटेंडेंस रजिस्टर ले जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्स द वर्ड व्हिच मंथ यू नीड, तो उसी मंथ में चले जाएंगे और रिकॉर्ड को हम लोग आराम से देख पाएंगे। डेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट इज आवर डेटाबेस। एंड दैट and that is your which type of a database, students? That is your physical database. That is your physical database. समझ में आ रहा है? क्योंकि फिजिकल डेटाबेस होता है क्या? जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग छू भी सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट इज आवर फिजिकल डेटाबेस। ओके, तो स्टूडेंट्स, लेकिन वो फिजिकल डेटाबेस ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। जैसे कि कभी गीला हो जाएगा तो क्या होगा? हो सकता है कि मे चांस टू टीयर दैट पेज, है कि नहीं? लेकिन हम लोग को इसी तरह एक डेटाबेस चाहिए जिसमें हम लोग लाइफ टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। कभी भी चाहेंगे कोई हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचा जब तक हम उसके ऊपर कोई हैम्पर नहीं करेंगे, ऑब्स्टेकल नहीं पहुंचाएंगे, तब तक मेरा डेटा एकदम सेफ में रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है स्टूडेंट्स, so that is we discuss that type of database.
and that database one is your example is your Excel database. So student database are of different types. One is your Excel database, one is your MS Access database, one is your Oracle database. ठीक है? तो स्टूडेंट्स डेटाबेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. क्या क्या है? जैसे कि हम लोग अभी पढ़ेंगे एक्सेल डेटाबेस, उसी तरह आगे हम लोग पढ़ेंगे एमएस एक्सेस. समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक है हम लोग का ओरेकल, एसक्यूएल. दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द डेटाबेस और सबका एम ही एक ही है. समझ में आ रहा है कि नहीं? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स इसी डेटाबेस में हम लोग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है क्या? डेट हाउ टू मेक ए डेटाबेस. एक डेटाबेस बनाने के लिए स्टूडेंट, टू मेक ए डेटाबेस, to make a database we need the first word table. We need the first one is a table. समझ में आ रहा है कि नहीं? सेकेंड में चाहिए स्टूडेंट हम लोग को फील्ड. उसके बाद क्या चाहिए? रिकॉर्ड. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक डेटाबेस को बनाने के लिए बेसिकली यही तीनों चीज चाहिए हम लोग. टेबल चाहिए, टेबल में फील्ड स्पेसिफाई करना पड़ेगा और फील्ड में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स हम लोग इतना कंप्लीट करेंगे तब मेरा एक फुल्ली डेटाबेस बन पाएगा. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ए fulfill a successful database. Okay, so students come to the first one, table. What do you mean by table? ठीक है, तो student table means what? It is a collection of records that can be stored in an intersection of rows and columns. ठीक है, table is the intersection of rows and column. Also you can say that one. Interconnection of inter. ठीक है, interconnected between the rows and column. ओके स्टूडेंट, उसका मतलब क्या है देखो अच्छी तरह से. ओके, still this is not our the successful table. When it will make a table, when there is your students row, okay, and there is a column. Okay, students, so don't be confused. Okay, rows means horizontal, किसी तरह. तो यदि मेरा ये टेबल हुआ है तो इसको हम बोलेंगे क्या? रो. दिस वन इज अ रो, दिस वन इज अ रो, दिस वन इज अ रो. कॉलम आएगा, सो दिस वन इज योर कॉलम. वर्टिकल, यदि ये मेरा मार्कर है तो इस टेबल में इसी तरह वर्टिकली जो देखोगे दैट इज योर कॉलम. यदि कॉलम को हम लोग इसी तरह करेंगे दैट इज आवर वर्ड. दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल. ओके, ये मेरा है. तो this one is called as a column, this one is called as a row. ठीक है, समझने के लिए कोशिश करो. तो इसी टेबल में तो दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन इज योर रो. तो इसी तरह मेरा इसमें कितना रो? रो 1, रो 2, रो 3, रो 4. समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, उसी तरह मेरा इसमें कितना कॉलम है? 1, 2, 3. So this one is a column 1, this one is a column 2, this one is a column 3. बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इसी तरह मेरा रो एंड कॉलम हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे. एंड इन ए टेबल, each row of a table also you can tell as a record. रिकॉर्ड को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? रो में. तो record contains information. That information can be inserted in a row wise. When the information can be inserted in a row wise, that is called as a record. Okay, to specify the record को स्पेसिफाई करने के लिए रिकॉर्ड किसके अंडर में डालेंगे? उसका जो
में हेडिंग होता है, द हेडिंग ऑफ द टेबल is called as a field. The field can be inserted in a vertically, that is called as column. Okay, the information can be inserted in a column. Okay, that will take as a column heading. It's called as a field. It's called as a field. Okay, यदि इंफॉर्मेशन को हम लोग रो वाइज लिखेंगे, इंसर्ट करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रिकॉर्ड। यदि इंफॉर्मेशन हम लोग वर्टिकली और वो भी कॉलम हेडिंग को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए स्टूडेंट व्हाट, फील्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यदि मेरा ये टेबल हुआ तो इसमें देखो दिस वन, दिस वन, दिस वन, क्योंकि फील्ड, सिर्फ फील्ड हम लोग क्या होगा, यू कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द फील्ड। तो रिकॉर्ड इज डिपेंडिंग ऑन द फील्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? रिकॉर्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फील्ड के ऊपर। यदि फील्ड नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत होगा? यू कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड रैंडमली। हम लोग जैसे रोल नंबर मतलब सिर्फ रोल नंबर कॉलम में लिखेंगे, यदि हम लोग कोई भी फील्ड नहीं देंगे तो दिक्कत क्या होगा बच्चे, बच्चे लोग? तो होगा क्या, रोल नंबर की जगह में स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम की जगह में फादर्स नेम, इसी तरह हम लोग इंसर्ट कर लेंगे, और जो भी हम लोग का डेटाबेस देखेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए देखो, यदि हम इसको करेंगे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, DOB, डेट ऑफ बर्थ, तो ये हो गया कॉलम हेड, and this is also called as a field. This is also called as a what? Field. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फील्ड ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसी फील्ड के हिसाब से हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे, अकॉर्डिंग टू द फील्ड व्हाट यू इंसर्ट द इंफॉर्मेशन, दैट विल, the collected of the information will be in a particular field that is called as a record। ठीक है, जैसे कि रोल नंबर 1, स्टूडेंट नेम सपोज प्रिंसी, स्टूडेंट नेम प्रिंसी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 1/7/1995 या 2000 जो भी है। ठीक है, तो देखो ये टोटल हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्शन कर, ठीक है, तो देखो ये टोटल रिकॉर्ड को मिलाकर एक फील्ड में, तीनों फील्ड में, तो क्या किया, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस टोटल कलेक्शन विल टेक एज ए वन रिकॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका मतलब दिस वन इज द रिकॉर्ड ऑफ ओनली वन स्टूडेंट, ये एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि दिस वन, तीन रिकॉर्ड है, नो। ठीक है, दिस वन, दिस वन इज रिकॉर्ड ऑफ वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? उसी तरह हम लोग जितना रो भरते जाएंगे उतना रिकॉर्ड मेरा बनते जाएगा। ठीक है, यदि कोई भी एक फील्ड का एक भी इंफॉर्मेशन छूटेगा, दैट इज नॉट योर सक्सेसफुल। कभी भी फ्यूचर में हम लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही चीज है स्टूडेंट मेरा। देखो दिस इज अ टेबल, तो इस टेबल में रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ इज कॉल्ड एज ए फील्ड, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज ए रिकॉर्ड। मेरा बात समझ में आया? अभी बात समझ में आया? सबको समझ में आया? कौन बोला इतना जोर से यस सर? क्या है नाम बाबू? चलो ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है,
अभी हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फील्ड हो गया, डेटाबेस हो गया। डेटा सॉर्टिंग क्या है देखो, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा सॉर्टिंग? ठीक है, सॉर्टिंग मीन्स व्हाट, अरेंजिंग द डेटा इन एन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एज ए सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स आइदर ascending or descending। ascending होगा नहीं तो descending होगा। so this is called as a sorting। तो यदि क्वेश्चन आएगा राइट द डेफिनेशन ऑफ डेटा sorting, then what you write the answer, arranging the data in an ascending या descending order is called as a sorting। ठीक है, डेटा को सॉर्टिंग करना। जैसे कि हम लोग देखो, इसमें रोल नंबर 1 लिखेंगे, इसके बाद रोल नंबर 10 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, तो ये मेरा क्या हो गया, रैंडमली हो गया। तो इसको अभी हम क्या बोलेंगे, टू स्टूडेंट्स प्लीज अरेंज द डेटा इन ए सीक्वेंस। तो तुम लोग फिर पूछोगे सर सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे, माने अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, है कि नहीं? तो यदि नॉर्मली हम लोग यदि अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर करेंगे तो क्या होता है हम लोग का, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इसको करने से फायदा क्या होता है, आई वांट टू नीड द रोल नंबर 5, डायरेक्ट रोल नंबर 5 में जाओ, हम लोग को मिल जाएगा। यदि रैंडमली होगा तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कहाँ 5 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सॉर्टिंग करने से फायदा क्या होता है, वी कैन इजीली सॉर्ट, वी कैन इजीली गेट द डेटा इन द डेटाबेस, इसलिए हम लोग को सॉर्टिंग का जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब स्टेप टू सॉर्ट द रिकॉर्ड, उसका स्टेप क्या है, हाउ टू सॉर्ट योर रिकॉर्ड। देखो, सॉर्टिंग करने के लिए स्टूडेंट पहले हम लोग को क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए सक्सेसफुल डेटाबेस। एक सक्सेसफुल डेटाबेस बनाओ, एक ठीक से टेबल बनाओ, उसमें फील्ड बनाओ, उसमें रिकॉर्ड बनाओ, तो पूरा सक्सेसफुल डेटाबेस बन जाएगा। आफ्टर मेकिंग द सक्सेसफुल डेटाबेस, देन व्हाट विल हैपन, देन यू सिलेक्ट द सेल और या रेंज ऑफ सेल, देन सिलेक्ट द सेल या रेंज ऑफ सेल। अभी मेरा सवाल आ गया, देखो सेल आ गया है, what do you mean by cell? Each rectangular box या each square of an Excel या table is called as a cell। Cell contains field में भी record। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेल में क्या रहेगा, फील्ड भी रह सकता है, रिकॉर्ड भी रह सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स, तो जिसको तुम लोग सॉर्टिंग करना चाहते हो उसको पहले सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देन गो टू द डेटा टैब, कहां पे हम लोग जाएंगे, डेटा टैब में। देन गो टू द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, चले जाओ, देन क्लिक ऑन द सॉर्ट ऑप्शन। वन सेकेंड आई एम टेलिंग यू। तो हम लोग क्या पहले करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट, पहले सिलेक्ट करना है हम लोग को रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ठीक है, 1 स्टूडेंट नेम प्रिंसी, ठीक, ये डेट ऑफ बर्थ था, इसी तरह मेरा चलेगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन सिलेक्ट रेंज ऑफ, हाँ बोलो बाबू क्या हुआ, सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल, देन क्लिक ऑन sort option from sort and filter group in the data tab। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद क्या जाएंगे, सॉर्ट ऑप्शन में जैसे क्लिक करोगे द टू ऑप्शन विल बी डिस्प्ले, असेंडिंग या डिसेंडिंग चाहिए। उससे पहले ये करने से पहले यू चूज द फील्ड, ठीक है, देन 3 में चूज द फील्ड, किस फील्ड के हिसाब से तुम चाहते हो सॉर्टिंग करने के लिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद क्या करना है, 4 नंबर में असेंडिंग या डिसेंडिंग, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करो।
चूज स्मॉल टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉल, देन क्लिक ऑन दी ओके। इतना करने के बाद क्या होगा, तुम लोग देख लेना कि टेबल में डेटा तुम्हारा सॉर्टिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुनाई दिया मेरा बात सबको? आवाज आ रही है?